السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتادبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم بارک علی محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، خطبہ مسنونہ میں قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کے کچھ حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آج کی اس محفل میں اسی آیت کریمہ سے متعلق اسلامی معلومات سے آگاہی کی کوشش کی جائے گی۔ رب قدیر میری زبان پر کلمہ حق کو جاری فرمائے۔ اسلام ایک کامل مذہب ہے۔ انسان کی انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک ہر طرح کی رہنمائی اس کے اندر موجود ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں یہ بات ذکر کی گئی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی کا معنی پرہیزگار بھی ہے، متقی کا معنی ڈرنے والا بھی ہے۔ قرآن کا ایک اسلوب زندگی جو قرآن دیتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ گزرے ہوئے زمانے کے واقعات بیان کرے اور موجودہ حالات کو ٹھیک کرے، اور مستقبل میں زندگی کیسے بہتر ہو اس کو بیان کرے۔ زیادہ تر ہم قرآن پاک سے پیچھے کی چیزیں اور موجودہ حالت کو ٹھیک کرتے ہیں، مستقبل ٹھیک ہو اس کے لیے قرآن سے رہنمائی نہیں لیتے کہ آگے کے دور میں کیا کرنا ہے۔ آج ہماری زندگیوں کا زیادہ تر خلاصہ یہ ہے کہ جو پریشانی آئی ہے اس کو حل کیسے کیا جائے۔ زندگی بہتر اس وقت ہوتی ہے آدمی کی کہ ماضی کے واقعات کو دھیان رکھے، مستقبل کو نظر میں رکھے اور حال کو ترتیب دے۔ یہ ایک زندگی کی بہترین طریقے میں سے شمار ہوتا ہے۔ آپ پلاننگ کریں، طور طریقے بنائیں۔ قرآن کا یہ ایک رہنمائی کا طریقہ ہے، ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کرنا، ہدایت راستہ دکھانا، چلانا، سامنے کا بیان کرنا آگے کیا ہے۔ آپ اپنے آپ کو اور ہم نے ارد گرد کو دیکھیں، ہم پریشانیوں میں پڑنے کے بعد اس سے نکلنا کیسا، اس پر پوری زندگی کو فوکس کیے ہوئے ہیں۔ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہم پریشانی میں نہ پڑیں۔ جب آدمی گھر بنانے لگتا ہے تو گھر بنانے والوں کو آپ دیکھیں گے کہ کئی طریقے کے ان کی سوچ و فکر کام کرتی ہے۔ کوئی کہتا ہے ٹائلز ڈالو، کوئی کہتا ہے فرشی ڈالو، کوئی کہتا ہے کہ فلاں ڈالو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک آدمی یہ بھی کہتا ہے کہ آپ جو بھی ڈالو اس کے ساتھ ایک فکسڈ بھی ڈالو۔ فکسڈ کا معنی ہوتا ہے کہ بھئی آپ کی پانی اگر لیکیج ہونے لگے تو چھت لیکیج نہ ہو، یعنی مستقبل کو سامنے رکھتا ہے کہ چھت لیکیج نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم ایک مضبوط گھر بنانا چاہتے ہیں تو اس اعتبار سے ہم یہ مستقبل دیکھتے ہیں کہ خطرات نہ آئے۔ اسلام کی تعلیمات کو آج ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ یہ پریشانی لاگو ہو گئی ہے، اس کا حل کیا ہونا چاہیے۔ یہ مصیبت آ گئی ہے، اس کا حل کیا ہونا چاہیے۔ قرآن تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ مصیبتیں آپ کو آئیں گی، اس کے لیے تم ابھی الرٹ ہو جاؤ۔ یہ مصیبتیں آئیں گی، تم اس کے لیے ابھی الرٹ ہو جاؤ۔ یہ آنے والی مصیبتوں کو بیان کر رہا ہے، پھر اس کا حل بتا رہا ہے۔ لیکن ہم اپنی زندگی کے طریقے یوں بنائے ہوئے ہیں کہ مصیبت سر پہ آ گئی ہے، اب اس کا حل کیا کرنا ہے وہ دیکھیں۔ میں اس مرحلے میں زندگی کے اسلوب کو وہ منطق کے ضابطے کی حیثیت سے 3 حصوں میں تقسیم کرنے کو مناسب سمجھتا ہوں۔ ہر انسان کی زندگی 3 حصوں سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک تہذیب اخلاق، تدبیر منزل اور سیاست مدینہ۔ سیاست مدینہ، مدینہ عربی لفظ ہے جس کے معنی شہر آتا ہے۔ آپ اس کو ملک بھی لے سکتے ہیں اور آپ کو اس چیز کو بھی لیتے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی چاہتے نہ چاہتے ان 3 حصوں سے جڑی ہوئی ہے۔ تہذیب اخلاق، آپ کی اپنی پرسنل زندگی، کہ آپ کپڑا کیا پہننا چاہتے ہیں، رہن سہن کیا ہے، لائف اسٹائل کیا ہے، آپ کی سوچ و فکر کیا ہے، اس کو آپ طے کریں، یہ آپ کی تہذیب اخلاق ہے۔ تدبیر منزل، آپ اپنے گھر کو کیسے رکھنا چاہتے ہیں، اپنے خاندان کو کیسے دیکھنا چاہتے ہیں، اور آپ اپنے فرینڈ سرکل، دوست احباب، رشتہ دار، ان سب کے ساتھ زندگی کیسے گزارنا چاہتے ہیں، اس کو تدبیر منزل کے حصے میں داخل کریں۔ اور ایک ہے سیاست مدینہ، جس کو کہتے ہیں کہ آپ
पूरी मजमूई हैसियत से मुल्क, शहर, कौम, ज़ुबान, कल्चर, तहजीब, तमद्दुन, इनमें आप अपने मुल्क को या अपने आप को किस मकाम पे देखना चाहते हैं, इसको सियासत मदीना कहते हैं। एक गफलत हमसे एक सदियों से होती आ रही है, बल्कि सदियों से कहें 75-80 साल से तो ये गलती हमसे हुई है कि सियासत मदीना पर तवज्जो वो नहीं है जितनी हम तदबीर मंजिल और तहजीब अखलाक पर कोशिश कर रहे हैं। यानी अपनी शख्सियत कैसे डेवलप होगी इस पर बड़ी फिक्र है। तदबीर मंजिल ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये है कि हमारा फ्रेंड सर्कल ठीक कैसे हो, दोस्त अहबाब कैसे बने, रिश्तेदार कैसे ठीक हो, इन पर कोशिश है। सियासत मदीना का माना ये है कि हमारी सियासी ज़िंदगी और बसीरत कैसे हो, इसके हवाले से हमारी बड़ी गफलत है। और इस गफलत की पहली इब्तिदा भी हुई थी हिंद और पाक की तकसीम का वो दर्दनाक पहलू कि जिसमें हिंद के मुसलमानों ने सियासी एतबार से शिरकत के बाद जो नुकसान उठाया था, उस वक्त के लोगों ने ये खुल्लम खुल्ला ऐलान किया था कि अब हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। ये एक बुनियादी गलती थी, जिस बुनियादी गलती ने मुसलमानों को हर शोबे में पीछे डाल के रख दिया है। अब इसके तबसरे का भी वक्त नहीं कि हम कितने नुकसानात उठा चुके हैं। सियासत जिसके मुतालिक कहते हैं, जब तक आप मुल्की सतह से ठीक नहीं होंगे, ना आप मंजिल के एतबार से ठीक होंगे, ना तहजीब अखलाक के एतबार से ठीक रहेंगे। गोया कि आप यूं कहें कि एक आदमी से क्या कहते हैं इज्तिमाइयत बनती है या इज्तिमाइयत के साथ एक एक आदमी ठीक होता है। मैं कहूँगा दोनों तरीके राइज हैं। एक आदमी ठीक होते होते आप इज्तिमाइयत ठीक होती है, और इज्तिमाइयत के एतबार से कोई मसला आता है तो फिर इनफरादियत भी ठीक होती है। मिसाल के तौर पर शादियों में हमारे पास 1100, 1000, 1500, 2000 लोगों की दावत का रुझान है, और एक एक आदमी को रोकने की इस मामले में कोशिश की गई कि वह बारात को कम से कम कर दिया जाए, कम से कम लोग शरीक हों। वलीमा बेहतर कर लीजिए चलेगा, लेकिन निकाह को मुख्तसर कर लें, आप बारात को कम कर लें, लेकिन बारात की तादाद दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। ये इनफरादी एक एक कोशिश से। अब इस्लाह का एक तरीका यह है कि एक आदमी पहले पहल करे तो दूसरा आदमी पहल करेगा, लेकिन आप देखें कभी इज्तिमाइयत के जरिए से भी ये मसला हल होता है कि लॉकडाउन पड़ गया, हुकूमत की तरफ से ऐलान हुआ कि बारात में सिर्फ 50 आदमी रहेंगे। 51 वाला आदमी परेशान था, कहा कि मैं 50 में क्यों नहीं हूं, तो 50 पर कई लोगों को शादी करनी पड़ी। तो आप बताएं, एक एक आदमी के जरिए से भी इस्लाह होती है, इज्तिमाइयत के जरिए से भी इस्लाह होती है। सियासत जो होती है वो इज्तिमाई फैसलों को तरतीब देती है, और इज्तिमाई फैसलों के जरिए से कई मसाइल हल होते हैं। आज जो हम इनफरादी कोशिश कर रहे हैं, ये इनफरादी कोशिशें कारगर नहीं होंगी, क्योंकि इज्तिमाई तौर पर जो हमारे लिए कवानीन बनाए जा रहे हैं वो इज्तिमाइयत, हमारी इनफरादियत और मंजिल दोनों को तबाह कर देंगे। उनमें से एक है वक्फ तरमीम बिल। वक्फ तरमीम बिल एक ऐसी चीज़ है जिसका शूर, जिसकी आगाही हमें बहुत कम मिलेगी। वजह क्या है? मैंने कहा कि हमारे पास सोचने का जो दायरा है वो ये दायरा है कि हम पहले इनफरादी अपनी ज़ात का देखते हैं, फिर उसके बाद अपने अहलो अयाल, अपने घर वालों का देखते हैं। अगर अपने अहलो अयाल की खैरखाही और अपनी खैरखाही देखना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा सियासत पहले ठीक होनी पड़ेगी। अगर सियासत ठीक नहीं होगी तो सूरत हाल ये होगी कि तहजीब अखलाक जो हम अपना कुछ भी डेवलप करना चाहते हैं, अपने घर वालों का डेवलप करना चाहते हैं, एक कानून आएगा, आपकी तहजीब भी बदल देगा और आपका घर भी तबाह कर देगा। सियासत एक ऐसी चीज़ है, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तकबिल की तरफ से इसकी तरफ इशारा फरमाया। इशारा फरमाकर हुजूर ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम कई कड़ियों से जुड़ा हुआ है। कड़ियां जैसे जंजीर में होती हैं, इस्लाम कई कड़ियों के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी जंजीर है, एक दूसरे से उसका ऐसा कनेक्शन है। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम की सबसे पहली कड़ी टूटेगी, उसके बाद इस्लाम की एक एक कड़ियां टूटती जाएंगी। ये हुजूर ने क़ब्ल अज़ वक्त बयान फरमाया, उस जमाने में बयान फरमाया जब इस्लाम की एक एक कड़ी मजबूत हो रही थी, एक एक कड़ी जुड़ रही थी। कैसे जुड़ रही थी कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तिदाई तौर पर इस्लाम का यानी तौहीद का ऐलान फरमाते हैं, फिर इस्लामी अहकामात को राइज फरमाते हैं, फिर धीरे धीरे करके इस्लाम को उरूज मिलने लगता है। यानी गोया कि इस्लाम की एक एक कड़ी मजबूत होती जा रही थी, टाइट होती जा रही थी, और एक लंबी जंजीर बन रही है।
उस जमाने में हुजूर ने फरमाया इस्लाम को जब नुकसान पहुंचना होगा तो इस्लाम की एक एक कड़ी टूटती जाएगी, और जब टूटती जाएगी तो फिर उसके बाद इस्लाम धीरे धीरे ज़वाल पजीर हो लग जाएगा। और हुजूर ने यूं भी इरशाद फरमाया इस्लाम की जो सबसे पहले कड़ी टूटेगी वो होगी मुसलमानों के हाथों से हुकूमत का निकल जाना, ये हुजूर ने फरमाया। और दूसरा आखिर में फरमाया इस्लाम की आखिरी कड़ी होगी वो है कि लोग नमाज पढ़ना छोड़ देंगे, ये आखिरी कड़ी। तो गोया कि इस्लाम के खत्म होने या इस्लाम के मानने वालों के अंदर ज़वाल पजीरी जो आएगी वो इन एक एक कड़ियों के टूटने से आएगी। उलमा ने इसको बड़े तफसील के साथ बयान फरमाया। आज जो हमारे पास हम जो जमातों में तकसीम हैं और जमातों के साथ तकसीम होने में फ़िरक़े बन के जो बैठे हुए हैं, उनमें एक दूसरे की तकफीर क्यों की जाती है? इसलिए कि एक आदमी उन जमातों को कई जावियों से देखता है कि ये मुसलमान हैं, लेकिन जो पढ़ा लिखा आदमी है वो जानता है कि इस आदमी के अंदर इस्लाम की बहुत सारी कड़ियाँ मौजूद होंगी, लेकिन एक कड़ी टूटी हुई है इसकी। मिसाल के तौर पर कादियानियों ने खत्म नबूवत का इनकार कर दिया। इस्लाम की एक कड़ी हुजूर को खातिमुन नबीयीन मानना था, तो खत्म नबूवत की एक कड़ी उसकी टूट गई, लेकिन लोग अभी भी उसको मुसलमान समझते हैं और उनको देखते हैं कि भाई दाढ़ी है, टोपी है, सारी सूरतें हैं, दूसरी शक्लें मौजूद हैं। और हम में से करीब करीब हर आदमी समझता है कि जो नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है, वाक़तन मुसलमान है, क्योंकि हुजूर ने नमाज और गैर नमाज के दरमियान तफरीक के लिए उस ज़माने में इरशाद फरमाया था कि काफिर और मुसलमान के दरमियान फ़र्क नमाज है, तो अब उसको पढ़ना। लेकिन अगर उसकी 99 कड़ियाँ टूटी हुई हैं, उसने तकदीर को छोड़ दिया है, आखिरत को छोड़ दिया है, और उसने हुजूर की मोहब्बत को छोड़ दिया, अजमतों को छोड़ दिया, अहले बैत की मोहब्बत को छोड़ दिया, सहाबा को गाली गलोच करना शुरू कर दिया, एक एक कड़ी तो उसकी टूट गई है, इस्लाम का दामन उससे छूट चुका है। और कई कड़ियां ऐसी हैं कि जिन कड़ियों के टूटने के बाद इस्लाम ही करीब करीब टूटता जाएगा। हुजूर ने मजमई हैसियत से ये बयान फरमाया कि इस्लाम की जो पहली कड़ी जो टूटेगी वो है हुकूमत। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मनहज नबूवत पर खिलाफत को जो अंजाम दिया वो खुलफाए राशिदीन है, इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक, बल्कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर का कुछ हिस्सा जो खुलफाए राशिदीन का दौर कहलाता है। फिर इमारत इस्लामिया है, अमीर बनाए गए, अमीरों का भी दौर चलता रहा। इस हदीस को मुसलमानों ने कम समझा होगा, लेकिन गैर मुस्लिमों ने इसको बहुत अच्छी तरह से समझा है। क्या इस्लाम को तोड़ना है तो उनकी कड़ियों को तोड़ो, और उनकी कड़ियों में पहली कड़ी जो मजबूत कड़ी है वो है उनको हुकूमत से दूर रखा जाए। और हुकूमत से दूर रखे जाने की ये जो सियासत हुई है, आज हम थोड़े थोड़े फायदे के लिए सियासत करते हैं, लेकिन हुकूमत में अपनी शमूलियत या हुकूमत में अपनी बात मनवाने पर कंप्रोमाइज कर लेते हैं। और जब ये कंप्रोमाइज कर लेंगे, जैसे मेरे हुजूर ने फरमाया कि मुस्तकबिल में इस्लाम की कड़ियां टूटती जाएंगी और पहली कड़ी ये होगी कि उनके हाथ से हुकूमत निकल जाएगी। हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों की तकदीर जहां मस्जिदों से है, मदारिस से है, खानकाहों से है, एक दूसरे की इज्तिमाइयत से है, उनमें सबसे ज्यादा मजबूत इनकी तकदीर अगर बननी है तो वो सियासत में सही तौर पर सही रहनुमाई और सही गाइडिंग की बुनियाद पर होनी। हमारा एक कसूर है, मस्जिद मदरसे में या खुतबे और जो तकरीरों में हमने सियासत को गंदी सियासत का लफ्ज देकर उससे इतना परहेज करवाया, इतना मुत्तकी उससे बनवाया कि जो गया वो मुत्तकी नहीं रहा और जो मुत्तकी रहे वो वहां गए नहीं। ये सूरत हमारी हाल बन गई, ये हमारी गलती है। लेकिन सियासत का ताल्लुक इस्लाम से इतना गहरा है, अगर आप सियासत को इस्लाम से निकाल दें तो आप ये कहेंगे कि इस्लाम कभी आप पूरा पेश ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने कहा अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। ये इंसानियत की इज्तिमाइयत पर ऐसी दलील है कुरान पाक की कि यहूद ने कहा था कि अगर ये आयत हमारे किताब में नाजिल होती तो जिस दिन ये आयत नाजिल होती उस आयत के नाजिल होने पर हम उस दिन को ईद का दिन मनाते। ये आयत के नाजिल, और ये आयत बताती है कि तुम्हारा मजहब कामिल मजहब है। सियासत से दूरी के लिए जो तकरीरें हुई माजी की गलतियां हैं, जो कुछ बातें बयान की गई वो शायद वो हजरात सियासत में रहकर बहुत ज्यादा तकलीफें उठाए थे, तो जो तकलीफ उठाता है वो ये राय जरूर देता है कि इसमें अब जाना नहीं है। लेकिन इतनी बात है
मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़ हो, मकाबिर का तहफ़्फ़ुज़ हो, औक़ाफ़ का हमारा तहफ़्फ़ुज़ हो, या हमारे मजहबी इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ हो, खानकाहों का तहफ़्फ़ुज़ हो, इस कड़ी के टूटने के बाद सारी कड़ियाँ एक एक करके टूटती जाएंगी। इसीलिए अगर गैरों ने यह समझा है कि इस्लाम को कमज़ोर करना है तो उनको हुकूमत से दूर रखो, उनको हुकूमत में किसी तरह से शामिल ना रखो, तो मुसलमानों को भी ये समझना होगा मस्जिदों की पुख्तकारी, मदारिस की पुख्तगी, खानकाहों की पुख्तगी, इन इदारों की पुख्तगी, तालीम गाहों की पुख्तगी, इन सब की पुख्तगी उसी वक्त पुख्तगी मानी जाएगी जब इनको तहफ़्फ़ुज़ देने वाली आपके पास कोई सियासी तदबीर हो। अगर ये हुकूमत हमारे पास नहीं होगी तो फिर आप किसी चीज़ का भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाएंगे। हर इंसान की ज़िंदगी इन तीन चीज़ों से जुड़ी हुई है, तहज़ीब अखलाक, तदबीर मंजिल, सियासत मदीना। इन चीज़ों से जुड़ने के बाद अगर सियासत मदीना यानी मुल्की सतह की सियासत मजबूत नहीं होगी, आज हम में जो लोग भी सियासत से जुड़े हुए होते हैं वो किन चीज़ों पे इक्तिफा करते हैं? आप मुझे सीट दिला दीजिए, मुझे फलां परमिशन दिला दीजिए, मेरे को फलां काम करवा लीजिए, मेरा काम हो गया, मैं सियासत में शामिल हो गया। सियासत में शमूलियत असल में इस चीज़ की है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान को जो फितरी तौर पर जीने का हक दिया है, वो जीने का हक जहाँ दूसरे इंसान को है, उस कम्युनिटी के आदमियों को वो सारे हुकूक मिले जो इंसान होने की हैसियत से होते हैं। अब दूसरा मरहला होता है कि अगर वो किसी मजहब का फॉलोअर है तो उस मजहब की आज़ादी उसको पूरी मिली जाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना के क़याम के बाद यहूदियों को जहाँ पर आपने मुआहिदा करके रखा था वो एक बेहतरीन जमहूरियत थी। ऐसी जमहूरियत के इस्लाम के तसव्वुर में इस्लामी तालीमात को मानने वाले कभी भी ये कह सकते हैं कि इस्लाम जमहूरियत से कभी नहीं जुड़ा हुआ है। हालांकि इस्लाम ने जमहूरियत का बाज़ाब्ता निज़ाम दिया है कि हर मजहब के मानने वाले को उसको पूरी इजाज़त होगी उसके मजहब पर कायम रहे। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर जिस शख्स ने कातिलाना हमला किया था वो मुसलमान नहीं था, वो गैर मुस्लिम था, ईरानी था। तो ईरान से सरजमीन पर अपने मजहब पर बाकी रहकर हज़रत उमर फारूक तक पहुँचने की उसको मुकम्मल एक खुली छूट थी। तब जाकर ऐसी रियासतें तो दुनिया में किसी ने आज तक पेश नहीं की होगी, लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमान जमहूरियत या जमहूरियत जैसे तर्ज हुक्मरानी से ऐसे गुरेज, ऐसे परहेज करते हैं। यकीनन आज के दौर में सियासत की एक कशमकश है, गहमा गहमी है। किसी इंसान का इस मकाम पर पहुंचकर ठीक ठाक चलना बड़ा दुश्वार मरहला है। लेकिन आप बताएं कि मस्जिद का इमाम हो या किसी मदरसे का मुदर्रिस हो, वो भी कितने मकामात पर अपने आप को किन चीज़ों से बचा पाता है। माहौल आपने ऐसे या माहौल ऐसा बना दिया गया है कि कितने मकामात पर उसको खुद भी अपने ऊपर कुछ कीचड़ लगाकर गुजरना पड़ता है। अब वो मजबूरी कहे अपने आप की, वो कुछ कहे, लेकिन इज्तिमाई तौर पर मजबूरी के मामले को लेकर, मुसलमानों के इज्तिमाई मसाइल को लेकर परेशानी। आज फिर मसला हमें दरपेश है वक्फ तरमीमी बिल का। तरमीमी बिल के खिलाफ जो एहतजाजात हुए और जो कुछ कोशिशें हुई, उससे सिर्फ इतना हुआ कि बिल को अभी रोका गया, उस पर मुकम्मल फैसले की कड़ियां आई तो कुछ शराइत माने गए और बाकी शराइत को नहीं तस्लीम किया गया। 14 चीज़ें थी जिन पर मुसलमानों को एतराज़ था, जिनमें से चंद को उन्होंने कबूल किया, चंद को कबूल नहीं किया। लेकिन पूरा तहफ़्फ़ुज़ हमारा मौजूदा बिल के साथ भी नहीं था, उसमें भी तरमीम की गुंजाइश थी, करना चाहिए था मुसलमानों के हकीकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, लेकिन जो कुछ था वो दुरुस्त था। इन 14 तरमीमात के बाद मुसलमानों में एक खलफशार हुआ, फिर उसके लिए एहतजाजात हुए, गली कूचे से लेकर बड़े बड़े मैदानों तक भर दिए गए और अपना एहतजाज दर्ज करवाया। तब जाकर ये बिल थोड़ा सा रुका, लेकिन इसको टाल कर रख दिया गया, उसका फैसला महफूज कर दिया गया। फिर फैसला भी आया, आने के बाद एक एंट्री का मौका दिया गया। एंट्री क्या थी कि आप अपनी अपनी जायदाद को वक्फ बोर्ड में दर्ज कराइए, और इसके लिए एक डेडलाइन दी गई कि दिसंबर की फला तारीख तक, दिसंबर तक आप अपनी जायदाद को तहफ़्फ़ुज़ दिलाएं। लेकिन इस एंट्री के बाद भी मुसलमानों में अपने तहफ़्फ़ुज़ात, अपने औक़ाफ़ की मिल्कियत की एंट्री कराने की बहुत सुस्त रफ्तार है। इतनी सुस्त रफ्तार है कि अभी तक उसकी पूरी एंट्री नहीं हो पाई। मेरे पास इल्मी एतबार से मेरी समझ जो नाक़िस है, मैं 2 तरह के खदशे देख रहा हूँ। मैंने पहले गुफ्तगू की कि सियासत में सही नुमाइंदगी और सही काम हमें हर तरह के तहफ़्फ़ुज़ात को दे सकता है। अब मेरे पास 2 खदशे हैं यहाँ पर।
हुकूमत खैरखा नहीं है, सब जानते हैं। मुसलमानों के लिए खास कर वो अच्छी नीयत नहीं रखती है और कुछ मिसालें इस पर शाहिद भी हैं। मुझे ये कहने में कोई ऐसी झिझक भी नहीं होगी या बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं होगी कि वो नीयत के एतबार से खैरखा नहीं, वो जमहूरियत के उसूल पर काम करने के तरीके को अपना नहीं रही, लेकिन उसके बावजूद मुसलमान को अपना हक हासिल करने के लिए खुद कोशिश करनी पड़ती है। अब वक्फ तरमीमी बिल में दो खदशे मेरे नज़दीक हैं कि मुसलमान अपने अपने इबादत गाहों को आर्टिकल जो हमारे दस्तूर में दिया गया है कि हर मजहब के मानने वाले को अपने मजहबी इदारे चलाने का हक है, इसी आर्टिकल के तहत मसाजिद, मदारिस और दूसरी खानकाएं या दूसरे तालीमी इदारे मुसलमान चला रहे हैं। इस आर्टिकल के तहत में अब उनको एंट्री कराना, दर्ज कराना कोई ज़रूरी नहीं, उनको खुली आज़ादी है कि आप गली में कोई 30-40 के प्लॉट पे करें या आप 100 एकड़ पे करें, ये आपको खुली इजाज़त है इसी आर्टिकल के तहत कि हर मजहब के मानने वाले को अपने मजहब की दावत और तबलीग करने की खुली इजाज़त होगी जब तक कि दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे। ये इस आर्टिकल के तहत कर रहे हैं। अगर अब ये आर्टिकल जो आया है वक्फ तरमीम बिल का, सारे औकाफ और सारी चीज़ें वक्फ में जमा कर दी गई, तो मेरा खदशा ये है कि अब उनके लिए आसानी होगी अमली तौर पर कि अब मुसलमानों की कोई भी जायदाद, कोई भी यानी इबादत गाह, वो हमारे मालूमात से बाहर नहीं है, सारा डेटा पूरा आ गया हमारे पास। और जब सारा डेटा आ गया तो जो तरमीमी बिल पहले लाए गए थे, दोबारा फिर उसके बाद वही तरमीमी बिल लाकर अब पूरी मुसलमानों की जायदाद का पूरा कब्जा भी करने की कोशिश की जा सकती है। आपको इसका अंदाजा होना चाहिए कितनी जगहों पर मसाजिद के पेपर्स, दस्तावेज सब कुछ मौजूद होने के बाद आज बुलडोजर लग रहा है, कितनी जगहों पर खानकाओं में सदियों से उनके दस्तावेजात मौजूद हैं, आज उन पर भी बुलडोजर लग रहा है, तो फला लग रहा है। तो एक खदशा यह है कि एंट्री कराएंगे तो भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात महफूज नहीं हैं, दूसरा नहीं कराएंगे तब तो आपके मामले को लेकर उनके पास पूरी इजाज़त होगी, ये मस्जिद, मदरसा, ये कब्रस्तान वक्फ बोर्ड में नहीं है और वक्फ में इसका इंदराज नहीं है, इल्लीगल है, इसको फौरन तोड़ दो। तो आप दो बलाओं में गिरफ्तार हैं, एक एंट्री करा कर भी गिरफ्तार हो सकते हैं बला में, बगैर एंट्री कराए के भी गिरफ्तार हो सकते हैं। और दो बलाओं में कमजोर बला कौन सी है? कमजोर बला है एंट्री कराना, ये बला है, एंट्री कराने में भी बला है लेकिन कमजोर है। अगर नहीं कराते हैं तो ये कवी बला है कि एक ही लफ्ज कह दिया जाएगा कि इसके शुमार कहीं पर नहीं है, इसको बुलडोजर लगा दिया जाए, तोड़ दिया जाए। आप बताएं, सियासत में सही नुमाइंदगी ना होने की बुनियाद पर एक बिल के जरिए से मुसलमानों के इज्तिमाई मसाइल को ज़मींदोज़ कर दिया जाएगा, फिर आप न तहजीब अखलाक से उसको बचा पाएंगे न तदबीर मंजिल से बचा पाएंगे। जाएगी किससे? सियासत मदीना से ही ठीक होने वाली है और उसके लिए बेहतरीन नुमाइंदगी सारी जमात के लोग अपनी अपनी जमात के तहफ़्फ़ुज़ात में लगे हुए हैं कि मेरी जमात महफूज रहे, मेरी जमात महफूज रहे। अगर ये बनाएंगे तो वो एक तस्वीर सबसे ज़्यादा नुमायाँ हुई थी कि एक बहुत बड़ी कश्ती में लोग उसी कश्ती के पतरे काट कर अपनी अपनी छोटी कश्ती बनाने में लगे हुए, और सारी ये छोटी कश्तियाँ डूब जाएंगी क्योंकि बड़ी कश्ती ही बड़े बड़े सैलाब को पार करके आगे जाती है, बड़े बड़े तूफान को पार करके आगे जाती है, छोटी कश्तियाँ तो डूब कर कहीं पर भी दफन हो जाती। उसकी मिसाल है बरेली की सरजमीन पर मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब की गिरफ्तारी, फिर उसके बाद मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है। आप अंदाज़ा करें, एक के बाद एक बलाएं आए। मेरे हुजूर ने फरमाया था कि जो सबसे मजबूत कड़ी है वो है हुकूमत का आपका ख़त्म हो जाना। एक कड़ी टूटेगी फिर उसके बाद कई कड़ियाँ टूटती जाएंगी और सारी कड़ियाँ टूटती जा रही हैं। इसीलिए उनको मालूम है कि मुसलमान को कमज़ोर करना है तो हुकूमत से इनको दूर करना पड़ेगा, ये कड़ी टूटेगी तो ही ये सारी कड़ियाँ टूटती जाएंगी। आपको मालूम है कि ये कड़ी टूटेगी तो सारी कड़ियाँ टूटेंगी, तो अब हमें और आपको करना होगा कि सियासत की कड़ी को मजबूत करना पड़े ताकि ये सारी कड़ियाँ महफूज रहें। आखिरी कड़ी मेरे हुजूर ने फरमाया था, नमाज पढ़ना छोड़ देंगे फिर इस्लाम करीब करीब ज़वाल पजीर हो जाएगा। ये चंद बातें मैंने आप तक इसलिए पहुँचाई हैं कि हर जब मसला उठता है तो उसके हल के लिए मीटिंगें होती हैं, और मीटिंग के टाइम पे ये होता है कि जो परेशानी आई है पहले उसको हल कर लें। अभी सेंसस हल नहीं हुआ है, वक्फ बोर्ड का हल नहीं हुआ है, गिरफ्तारियों का हल नहीं हुआ है,
ایک ایک کڑی جب ٹوٹ یا آپ پہ حل کر لیتے بیٹھے ہوئے، ان ساری کڑیوں کا مجموعی حیثیت یہ ہے کہ سیاست میں بہتر نمائندگی ہونا. ہمارا شعور بیٹھے گا تو ہم اس پر کمپرومائز نہیں کریں گے. نالی بنانا ہے، نل بنانا ہے، روڈ بنانا ہے، سڑک بنانا ہے، آپ کو کہنا پڑے گا ہمارا بل بنا کے پیش کرو، ہمارے بل کے ذریعے سے تحفظات فراہم کرو. یہ اگر کڑیاں محفوظ رہیں گی تو ساری کڑیاں محفوظ رہیں گی. پھر اس کی حفاظت بھی بہت اچھے انداز سے ہوتی ہے. قرآن نے کہا ہدی للناس. ہم صرف ماضی کو ٹھیک نہیں کرتے ہیں، ہم مستقبل کو ٹھیک کرتے ہیں. مستقبل کی رہنمائی قرآن میں موجود ہے. تو میں نے اپنے انداز میں یہ بات سمجھی، آپ تک پہنچائی. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کئی رائیں گزشتہ اتوار آپ سے لی گئی تھیں، اس رائے پہ انشاءاللہ عمل ہوگا. اگلے اتوار سے یہ محفل کا جو آغاز ہوگا وہ قریب 11:15 بجے ہوگا، یعنی 11:45 سے ہوگا اور قریب یہ ختم ہوگا 12:50 پر. ممکن ہے 12:45 پر بھی ختم کریں، لیکن 12:50 10 منٹ پہلے انشاءاللہ یہ محفل ختم ہوگی. اور اس میں ایک قرآن کی پہلے قرأت پڑھی جائے گی، ایک نعت شریف پڑھی جائے گی، پھر اس کے بعد درس قرآن ہوگا. پھر ممکن ہے 2 بیانات ہوں مختصر طور پر. یہ اگلی اتوار سے یہ کارروائی رہے گی، اور ممکن ہوا تو مہینے میں یا 2 مہینے میں ایک بڑے بزرگ یا عالم دین بھی تشریف ضرور لائیں گے. آپ کی رائیوں کا بڑا شکریہ. کوشش کی ہے. خواتین کا مسئلہ ابھی باقی ہے، انشاءاللہ کبھی ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرش محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا. آپ کے لیے بھی اعلان ہے، آپ دوسروں تک بھی یہ بات پہنچا دیں کہ کرناٹک اسٹیٹ کی طرف سے کاسٹ سروے جو چل رہا ہے، اس کاسٹ سروے کے لیے بہت دنوں سے 22 ستمبر سے غالباً کوشش شروع ہوئی ہے اور ابھی بھی چل رہی ہے. آج 12 اکتوبر ہے. 12 اکتوبر کی تاریخ کو اسی جگہ پر مرکز سنی دعوت اسلامی سید گلی چھوٹا روزہ درگاہ شریف کے بالکل قریب گلبرگہ شریف کرناٹک میں آج کے دن خاص سروے رکھا گیا ہے. جہاں تک میری آواز پہنچے آپ بھی یہاں ہیں، دوسروں تک پہنچائیں. اگر آپ کے گھر تک کوئی آفیسر نہیں پہنچے، کوئی ٹیچر نہیں پہنچے، سروے آپ کا نہیں ہوا ہے، تو آپ اپنا راشن کارڈ، آدھار کارڈ اور آئی کارڈ یعنی الیکشن کارڈ اس کو لے کر آئیں اور اپنے گھر کا پورے سروے کرا کر رکھیں. اس سے ہمارے ہر طرح کے مسائل کا تعلق جڑا ہوا ہے. حکومت ہماری طرف اس کی طرف پہل کر رہی ہے، تو ہمیں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اس میں ضرور شرکت کرنا چاہیے. اور یہ موقع آپ کو کئی جگہ دیا جا رہا ہے. شاداب فنکشن ہال میں بھی اس کا موقع ہے، وہاں پر کرا سکتے ہیں. فضل حق انگلش میڈیم اسکول جو عرفات کالونی میں موجود ہے، عرفات کالونی آزاد پور روڈ، وہاں پر بھی یہ اسکول کے اندر سروے کو یعنی اندراج کیا جا رہا ہے. آپ جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے، آپ لوگ سب لوگ اس میں شامل ہونے کی کوشش کریں. اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم.